fear of the tyrant Kansa, Devki's supreme joy, I salute thee, Krishna, Lord of the universe. वसुदेव के अलौकिक पुत्र, कंस को वधने वाले, देवकी के परम आनंद, हे जगत गुरु, आपको मेरा शत शत नमन। वसुदेव सुतं देव कंसे चाणूरे मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Centuries ago, there existed a favored kingdom, a splendid domain, untraveled by any other in the land. A kingdom ruled by the Kuru dynasty, favored by the gods. Two brothers there were, Pandu and Dhritarashtra. Pandu blessed with 5 sons, the Pandavas, wise, strong and intelligent. Dhritarashtra, sire of 100 male offsprings, the Kauravas, in whom the seeds of pride, greed, envy and lust germinated and blossomed into evil. Pandu died, and Dhritarashtra devious in his ways. Having robbed his brothers' heirs of their rightful inheritance, ruled supreme, surrounded by wicked intrigue. Krishna, God incarnate, came to try and divert the evil spawned by the Kauravas. But it spread its tentacles, culminating in a fratricidal war, the likes of which had never been experienced. On the battlefield of Kurukshetra, Arjuna, personifying the human mind and emotions, succumbs to grief and uncertainty. Krishna coaxes him out of his depression, explaining what lies before him and how he should face and overcome it. The word Arjuna means one who makes sincere effort, and the word Krishna stands for the center of consciousness. Krishna's explanation and Arjuna's acceptance of it are the essence of his sustaining philosophy. Arjuna's struggle is that of every human being. His sorrow and hesitation known to each of us. Each day and each moment of our lives, we encounter new challenges. Unknown goals beckon us, and the verses of this celestial song teach us how to meet them. The spirit of man seeks, uncertain of what it will discover. None of us is perfect. It is the striving towards perfection that enriches our lives. For far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs even though marred by failures, than to be cramped with those feeble spirits who neither enjoy nor offer much. Because they exist in that great twilight that knows neither victory nor defeat. सदियों पूर्व द्वापर युग में एक अद्वितीय राज्य स्थापित था, एक विशाल क्षेत्र जिसकी तुलना जगत में नहीं। कुरुवंश का आधिपत्य जिस पर स्वयं देवताओं की छत्र छाया थी। 2 भाई थे वहाँ, पांडु और धृतराष्ट्र।
पांडु के 5 पुत्र पांडव बुद्धिमान, बलवान, शूर और ज्ञानी। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों के पिता कौरव, जिनमें घमंड, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह और लोभ के बीज अंकुरित हो विष का रूप धारण कर गए थे। पांडु की मृत्यु हुई और धृतराष्ट्र छल कर अपने भ्रातृजों के अधिकार का दमन कर राज्य करने लगे। उनके चारों ओर घिनौने चक्रव्यूह रचे जाने लगे। साक्षात ईश्वर ने श्री कृष्ण के रूप में आर्यावर्त एवं हस्तिनापुर को बचाने का प्रयास किया, पर अनैतिकता और पाप की जड़ें इतनी सशक्त हो गई थी कि भाइयों के बीच युद्ध रोकने में असफल हो गए। युद्ध हुआ, महायुद्ध, अद्वितीय महाभारत। कुरुक्षेत्र की भूमि पर मानव स्मिता और चेतना के प्रतीक अर्जुन विचलित हो गए। दुख और अकर्मण्यता ने उन्हें घेर लिया। श्री कृष्ण उन्हें आत्मग्लानि से बाहर करते हैं, समझाते हैं आगे क्या है, उसका सामना कैसे करें और विजयी हो। अर्जुन का अर्थ है सतत प्रयास, कृष्ण का अर्थ चेतना के केंद्र बिंदु। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित 2 परस्पर विरोधी सेनाओं के मध्य प्रयास और चेतना के बीच संवाद। यह किसी और देश, धर्म और युग में संभव है? एक ऐसा संवाद जिसकी कल्पना पुनः असंभव है। एक ऐसा संवाद जो युगों को चीरता हुआ आज भी, कल भी और चिरकाल में भी प्रासंगिक रहेगा। श्री कृष्ण के उपदेश और अर्जुन का ग्रहण करना आध्यात्म के सार है। अर्जुन की व्यथा, उनका अंतर्द्वंद हर मानव को ग्रसित करता है। मानव के दुख, विकल्पों के चयन की व्यथा से हम सब परिचित हैं। हर दिन, हर पल हमें नए मोड़ पर खड़ा करता है। अनजान उद्देश्य हमें बुलाते हैं और ईश्वर के हृदय के उद्गार, गीता रूपी गीत संग्रह में हमें पथ प्रदर्शित करते हैं। मानव चेतना ढूंढती है, पता नहीं परिणाम क्या होगा, क्या पाएंगे। एक आदर्श मानव भी पूर्ण रूपेण श्रेष्ठ नहीं, परंतु गीता उसे श्रेष्ठता की ओर ठेलती है, क्योंकि बड़े कार्यों के लिए संकल्प करना, बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही श्रेष्ठता के मानक है। यद्यपि इस विजय प्रयास में कई बार पराजय और निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसा मानव उन भीरू आत्माओं से बढ़कर है जो न कर्म में विश्वास करते हैं, न ही पराजय विजय के चक्र को समझते हैं। वे तो जड़ और चेतन की गोधूली में किन कर्तव्य विमूढ़ जीवन व्यर्थ कर देते हैं। Srimad Bhagavad Gita. Dhritarashtra, king of the Kurus, sits on his throne, his mind filled with the terror of impending doom. A hot driving blows through the abandoned walls of his palace, echoing despondently in the silent emptiness. His loneliness intensified by the suffocating desire to be at the scene where all are. Cast in his sightlessness, he speaks. Gathered on the field of righteousness, massed in a battle array on the land of Kurus, are my people and the sons of Pandu. What do they bear, O Sanjaya? श्रीमद् भगवद गीता। धृतराष्ट्र, कुरुओं के राजा, सिंहासन पर बैठे हुए, उनके मस्तिष्क में आने वाले विनाश का पूर्ण आभास। ग्रीष्म ऋतु की लू उनके रिक्त भवन में बह रही है। उसकी ध्वनि समूह शून्यता में अपशकुन पैदा कर रही है।
उनका अकेलापन जैसे श्वासा विरोधित इच्छा पैदा कर रहा हो। काश मैं भी कुरुक्षेत्र में होता। अपनी दृष्टिहीनता में कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना करने वाले मेरे और पांडु पुत्र किस स्थिति में हैं? Sanjaya speaks. The Prince Duryodhana, seeing the Pandavas grouped in fighting ranks, addresses his teacher. Say, your master, the sons of Pandu are organized by your vice pupil, the son of Drupada. Our army led by Bhishma is vast and mighty. Theirs, guided by Bhima, is but limited. Eldest of the 100 strong brothers, the leader of the Kuru Royal stands, arrogance in his bearing, his challenge implicit. संजय ने उत्तर दिया, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी पांडु सेना को देखें। भीष्म पितामह के नेतृत्व में हमारी सेना हर प्रकार बड़ी है, अजेय है। पांडु सेना तो सीमित है। अपने 100 भाइयों में अग्रज दुर्योधन खड़े हैं। अभिमान के प्रतीक उनके हर शब्द में अहंकार और ललकार है। A chariot drawn by white horses is brought to a standstill in the midst of the Pandava forces at the commands of his offspring, the young warrior Arjuna, the pride of the Pandavas. कुरुक्षेत्र में दूसरी ओर सफेद घोड़ों से खिंचता हुआ एक रथ पांडव सेना के मध्य आकर पांडवों के गर्व अर्जुन के आदेश पर खड़ा हो गया है। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये
Arjuna views the scene before him. He looks beyond the dividing line, soon to be crossed. Facing him are his granduncle, venerable protector of a great dynasty, its bloodline corrupted now by greed and envy. His cousins, his friends, his relatives. A soldier, he has until now fought in personal wars. Until this moment, he has been diverted by preparations, by frenzy of mounting war lust, forgetting in the rush of battle who he has to fight against. As realization dawns, as he sees the familiar love faces confronting him, he is steeped in sorrow. The young fresh complexion face turns ashen. Impulsively, he turns to his charioteer. Oh Krishna, I see before me my own people, my own kinsmen waiting to do battle with me. I tremble with horror. Mount high. I desire neither victory nor kingdom, nor glory nor happiness. Oh Govinda, of what use is happiness or life if destruction be the price? अर्जुन अपने सामने के दृश्य को देख रहे हैं। सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, जिन्होंने कुरु वंश को आर्यावर्त का श्रेष्ठ वंश बनाया, और इसी वंश के रक्त में विकार आ गया है। और खड़े हैं अर्जुन के गुरुजन, भाई, बंधु, मित्र। अर्जुन एक योद्धा ने अभी तक तो अव्यवहित युद्ध लड़ा था, और अब तक कुरुक्षेत्र में संभावित महासमर की तैयारी में महायुद्ध की ललकार से उन्हें सोचने का समय नहीं मिला था। भूल गए थे वह किसके साथ युद्ध करने वाले हैं। आज समर आरंभ होने से पूर्व दोनों सेनाओं के मध्य रथ विराजित जब अपने बंधुओं को शत्रु रूप में देखते हैं, अर्जुन दुख और ग्लानि के शिकार हो जाते हैं। उनका सुंदर गौर मुख फीका पड़ जाता है। वेदना से ग्रसित एकाएक अर्जुन अपने सारथी की ओर मुड़कर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने सामने देख रहा हूँ अपने ही लोगों को, अपनी ही रक्त को, जो हमसे युद्ध करेंगे। मैं दुख से थरथरा रहा हूँ, मेरा मुख सूख गया है। मेरी कामना नहीं, अब विजय की, राज्य की, शौर्य की, प्रसन्नता की। हे गोविंद, ऐसा सुख, ऐसी जिंदगी से क्या लाभ जिसका मूल्य विनाश से चुकाना पड़े। दृष्टेनं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोषति मे पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षणि
हे कृष्ण, कायरता और मोह ने मुझे घेर लिया है। मैं निश्चय विहीन हो गया हूँ। हे माधव, आप बताएं मैं क्या करूँ? कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शेषस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। Arjuna's charioteer Krishna turns to him, his eyes full of love and release for his great warrior disciples, and decides to recite for the second time ever the celestial song he had earlier recited in the emptiness of zero, laying down the laws of life before creating the universe. सारथी श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़ते हैं। उनके नेत्र इस महान योद्धा शिष्य के प्रति प्रेम और चिंता भरी है। उन्होंने निश्चय किया कि जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्मांड सृष्टि तथा जीवन से पूर्व शून्य में अपने हृदय के उद्गार एवं मानव जीवन के नियम, रहस्य एवं मूल्यों का विश्लेषण किया था, पुनः आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के रूप में सुनाएंगे। Arjun, he says, you talk wisely, but grieve over those who should not be grieved for. Wise people do not shed tears for the living or the dead. श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमता से बोल रहे हो पर उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं। ज्ञानी विज्ञानी जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते। श्री भगवान वाच, अशोचा नन्वशोचस्त्वं, प्रज्ञावादानश्च भाषसे, गतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। Krishna speaks on. Arjuna, in this holy war should you die, you will win heaven, conquer and you rule the earth. A warrior fighting for a just cause loses nothing. Stand up, O Arjuna, and fight with determination, mission and passion. पार्थ, तुम जन्म कर्म और धर्म से क्षत्रिय हो, अतः इस धर्म भूमि में तेरे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धम्याधियुद्धाश्रयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में यदि तुम वीर गति को प्राप्त होते हो, तुम स्वर्ग पाओगे,
जीतते हो तो साम्राज्य तुम्हारा। एक क्षत्रिय धर्म युद्ध में कुछ नहीं हारता। उठो पार्थ, दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। उठाओ अपने शस्त्र। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। Parth, you are a soldier, and it is your duty to fight injustice, not to waver in your resolve, for there is nothing more welcome for a warrior than to fight a righteous war. Jagat Guru, teacher of the universe, Lord Krishna goes on. Your right is only to do your duty, not to the results of your labor or actions. Do not seek rewards for your work, and do not give in to temptations of inaction. धनंजय, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, उसके पारितोषिक में नहीं। तुम कर्मों के फल की आशा न कर अनायास भाव से कर्तव्य निभाओ। कर्मण्येव